इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लड़कियों का, राइट, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है, क्या क्या फॉलो करना चाहिए? कभी पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग होती है बहुत ज़्यादा, कभी नहीं होती है। जैसे आपका फाइब्रॉइड है तो उस केस में भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है आपको। ओके, तो जो साइकिल रेट कुछ रहता है क्या, 24 से 28 डेज ऐसा कुछ? ऐसा फिक्स नहीं होता है, नॉर्मली वही मैं कह रही हूँ ना, 28 डेज। अगर हमें पता चला कि बच्चे के कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो पहले 8 अच्छा। वीक्स में और उसके बाद 12 वीक्स में, ओके। हाँ इसमें कर सकते हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट आप क्या कंसल्ट करते हो? डायबिटीज के लिए क्या क्या फॉलो करना है? सबसे ज़रूरी है ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और साथ में HB1AC। ओके, तो आजकल जो लाइफस्टाइल का इशू है, लेट में सोना है, लेट में जागना है, तो उसका हेल्थ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट है और हम कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं? कौन सा? अगर मॉर्निंग में इसको काम करते उठ के 9 o'clock पहुंचना हो, वो कैसे सो सकता है? दोज पीपल हु आर आर्टिस्ट और हु हैव देयर ओन बिजनेस, वो इंडल्ज करते हैं इन सब चीज़ों में। Hey, hi all, this is Sudhir. My channel name is Stories by Sudhir. So today my podcast guest is Dr. Nina Sinha. So she is a practitioner in NTPC for the last around 30 years. So welcome ma'am. Can you tell about your journey in NTPC? How did you start? और कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? Yes, actually I did my MBBS from Government Medical College Jammu. Okay. And I did my internship from that same college. After that I got married in 1991. Okay. And I came to Delhi. My father-in-law was he was MS and head of the department, hospital administration in AIMS. Okay. So, and eventually my husband got a job in AIMS. So here I did my house job in Safdarjung, in gynae ops in Safdarjung. Okay. Not for 6 months, but more than 6 months. That is 1.5 years. Okay. And then rest 6 months I did my house job in cardiology from AIMS. So I had exposure of both the hospitals. Okay. So after that, this post of medical officer was advertised in NTPC. So I applied in that and I gave written exam as well as viva voce, and I was selected. And so I got into one of the Maharatnas of India, that is NTPC. NTPC, yeah. NTPC, and then my journey became. I started working in Badarpur Thermal Power ये Corporation. कौन सी ईयर की बात है? This was in 1995 I got. Okay. But before that also, 2-3 years I worked as ad hoc doctor in NTPC only. Okay. So I got this job, and then I worked for 1 year in Badarpur. Then I was transferred to Corporate Center Noida in 1996. From 1996 to 2001 September, I served there. Yeah. And then I was transferred to headquarter Scope Complex near Nehru Stadium. Okay. There I worked for 16 years. Oh my God. Okay. Then I was transferred to Unchahar, which is a project near Lucknow. Okay. It's an NTPC project. So there you have all the facilities, hospital, township, everything there. Okay. तो ये जो पहले 16 साल आई थिंक दिल्ली एनसीआर में आपने काम दिल्ली किया, NCR उसके बाद उधर लखनऊ चले गए? Lucknow gave just for 1.5 years. Okay. Then I again came back to NTPC. Okay, they transferred back to once again. And Okay. not NTPC exactly. There's a joint venture called WESL. Okay. So I was working there for 7 years, and then I got retired. Okay. So retirement happened, कौन से ईयर में आपका रिटायरमेंट हुआ? अभी पिछले साल 2025 August. Okay, okay. So you have completed the whole journey, right? Whole journey, yes. So how was the journey? Because completing the whole journey. See, I was lucky to have worked in one of the mammoth company called NTPC. Yeah. कभी भी मतलब अभी भी छोड़ने का दुख होता है, because अभी तो मजबूरी है कि that Right. I'm retired. Yeah. Beautiful company. I mean, ये एक ऐसी company है where they fulfill every desire of yours. Okay. You know, you How are was your last day celebration? very nice, very good. Okay, okay, good.
Yeah, because nobody retires, right? Somebody takes premature retirement. No, People no. don't love, but it is better that yeah, you love your Yes, job. it was my whole journey Yeah. was uneventful. कोई मेजर वैसा नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम हुई हो. Okay. बिल्कुल स्मूथ गई and I gain love from people because Okay. being a lady and being a gynecologist and सबको पता था कि इनके पास आओ तो ट्रीटमेंट मिलेगा. Okay. बिकॉज बड़ा ही उस तरीके से हमने पेशेंट को देखा है दैट Okay. पेशेंट रियली रियली सेटिस्फाइड Okay. with the treatment. So you had a family of also doctors, right? Husband and Yes, okay. yes. Okay, I have a that- family of doctors. My husband is in All India Institute of Medical Sciences. Okay. So he's still there because their retirement is 65. Okay. So he's 61 years. Okay, great. So I am here. I've joined private sector. Okay. So okay, you are working in private clinic and you are also I have my own clinic. Okay, okay. I have my own clinic. I'm working with my son. Okay. He's also involved into medical line. Okay, so everybody. Everybody is Okay, great. Where is your clinic in Delhi? daily. It's in Safdarjung. Okay. Just up, you come out of the Safdarjung hospital. Okay. There are rows of shops. So one of the shop we purchased. Okay, okay. So one is there and one is in Gautam Nagar. Gautam Nagar. Okay, fine, great. So let's come to this topic, right? Gynec. So अभी हमारा क्या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है लड़कियों का, राइट, टीनेज में, तो उसके लिए आपका क्या सजेशन है, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, राइट? देखिए, irregular menstrual cycle can be divided into different stages of age. Okay. Different age group में different उसका presentation होती है. For example, girl when periods start, उसको मेनाकी बोलते हैं. उसके बाद पहला पीरियड आया, राइट. उसमें पीरियड स्कैंटी भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी ब्लीडिंग हो सकती है. ओके. और देन देयर इज अ गैप ऑफ, नॉर्मली देयर इज अ गैप ऑफ 4-5 months ऑल्सो. कभी कभी 4-5 महीने के बाद भी आता ओके, है. फर्स्ट और सेकंड में इतना गैप हो सकता है. इतना गैप होता ओह है. माय गॉड. ओके. ठीक है, ये तो हो गया आपका एक बच्ची का, मतलब 15 years 14-15 years में जब भी आपका स्टार्ट होता है, राइट. तो पहले पीरियड के बाद नॉर्मली इतनी जल्दी रेगुलर नहीं होते हैं. टेक्स टाइम. राइट. सो ये उसके भी इरेगुलर होते हैं. हाँ. दूसरा स्टेज आता है व्हेन अ गर्ल इज अराउंड, उसको कोई प्रॉब्लम हो. फॉर एग्जाम्पल पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो, यंग गर्ल में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उसके और पैरामीटर्स भी होते हैं. ओबीज हो, हर्सुटिज्म हो, उसमें हर्सुटिज्म का मतलब है कि थोड़े थोड़े बाल और ओके. आना. ओके. ठीक है, तो पीसीओडी इज अगेन वन कंडीशन वेयर यू हैव इरेगुलर पीरियड्स. कभी पीरियड्स हैवी ब्लीडिंग होती है बहुत ज्यादा, कभी नहीं होती है. सो अदर कॉजेज आर मेडिकल कॉजेज. जैसे आपका फाइब्रॉइड है, तो उस केस में भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है आपकी. तो देयर आर ओवेरियन सिस्ट होते हैं, उसमें भी इरेगुलर ब्लीडिंग होती है. फिर आपका जो है विद एज, अब ओवेरियन सिस्ट सिंपल भी होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, फिर वो कैंसरस भी होते हैं. ओके. सो ये सारे जितनी भी डिजीजेस आपके आ रहे हैं, दे लीड टू इरेगुलर ब्लीडिंग. ओके. ओके. नॉर्मल किसको बोलते हैं हम? नॉर्मल एज सच कोई फिक्स्ड डेज नहीं होते हैं. नॉर्मल होते हैं गर्ल हु इज मेंस्ट्रुएटिंग फॉर 4 to 5 days. नॉर्मल फ्लो होता है. नॉर्मल फ्लो मीन्स वो 2 से 3 पैड्स यूज कर सकती है. 5 days का होता है और हर रेगुलर इंटरवल पे आता है. फॉर एग्जाम्पल आज अगर 5 जून को आया है तो 2 या 3-4 ठीक है, ओके. वो नॉर्मल है. Okay. बट वो डिले हो जाता है देन इट इज एबनॉर्मल. ओके. और तो वो डिले भी बार बार होता है. सो दैट इज एबनॉर्मल. ओके. तो जो साइकिल रेट कुछ रहता है क्या, 24 से 28 डेज ऐसा कुछ? ऐसा फिक्स नहीं होता है. नॉर्मली वही मैं कह रही हूँ ना, 28 days आप लगा लेते हैं. Okay. बट किसी में 32 days भी होता है. ओके. बट अगर वो रेगुलरली वो साइकिल आ रहा है 32 days में, Okay. then it's okay.
ओके बट अगर वो 32 डेज में अभी आ रहा है और फिर उसके बाद 45 दिन में आ रहा है, तो देन दैट गैप इज मोर. तो आप क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हो, मतलब कुछ मेडिसिन या कुछ लाइफस्टाइल कोर्स चेंजेस? पहले तो हम हर चीज को एनालाइज करते हैं ओके कि किस कारण से हो रहा है ये. राइट ठीक है, अगर पीसीओडी है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, हम्म अगर फाइब्रॉइड है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है. ओके ठीक है, अगर आपका और ओवेरियन सिस्ट है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है. तो हर एक का ट्रीटमेंट अलग है. ठीक है, Okay. बट मोस्टली हम उसको पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हार्मोन्स देते हैं. ओके ठीक है, हाँ हाँ तो वो मतलब वो जैसे आपका पीसीओडी है उसमें भी हार्मोन्स देते हैं. राइट तो बट पीसीओडी के केसेस में आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या मैनेज करना पड़ता है लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल में देखिए, अगर आप ओबीज हैं तो Okay. आपको वेट रिडक्शन मस्ट है. हम्म इन केसेस में क्या होता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. ओके इंसुलिन रेजिस्टेंस का ये मतलब होता है कि इंसुलिन तो बनती है बट वो टारगेट ऑर्गन पे एक्ट नहीं करती है. अच्छा और फिर क्या बनता है, एंड्रोजेंस बनते हैं. एंड्रोजेंस बनने से मेल हार्मोन्स होते हैं, वो ज्यादा बनते हैं इन केसेस में. तो दाढ़ी मूछ ये सब अच्छा आती है. तो ये सारी चीजें हमें, अब जैसे अगर आपका कुछ कुछ लोग तो शुगर की जो एक मेडिसिन आती है मेटफॉर्मिन वो देते हैं. कुछ वेट रिडक्शन के लिए तो मस्ट कहते हैं कि वेट रिडक्शन करें. ओके कुछ केसेस में तो आपको हार्मोन्स रेगुलर टाइम मतलब साइकिल में देने पड़ते हैं. ऐसे तो बहुत सारी डिजीजेस हैं जिसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। ट्रीटमेंट होता है. तो जो हार्मोन्स देते हैं कितने टाइम के लिए जनरली देते हैं? कुछ 3 3 महीना साइकिल्स में 3 मंथ्स 3 मंथ्स three का एक months साइकिल, normally, हाँ. फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं फिर से ऑब्जर्व. हाँ हाँ. ओके ओके बट सबसे जरूरी है मिस्टर सुधीर, यस सुधीर मिस्टर सुधीर, ये जो हमारा लाइफस्टाइल है राइट जो बच्चों ने इस टाइम अडॉप्ट किया हुआ है, नो एक्सरसाइज, राइट खाली फोन पे देखना राइट और रात रात पर जागना, उससे क्या हो रहा है, वेट बढ़ रहा है. और जो शराब एंड और देन I think- आपका स्विगी एंड Yeah. दिस एंड दैट, और वो जो बाहर से मंगवा के खाना खाना. मैंने हर पॉडकास्ट में यही एम्फसाइज किया है दैट पेरेंट्स शुड रियली रियली अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. घर में खाना बनाइए. राइट आप घर में सादा खाना भी दाल चावल बनाते हैं, दैट इज मोर बेनिफिशियल देन ऑर्डरिंग मटन फ्रॉम स्विगी और राइट चिकन फ्रॉम दिस. या बिकॉज जो घर में तेल मसाले और हम क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज करते हैं, दैट इज टोटली अंडर आवर कंट्रोल. हम अपना देख के माप के देखते हैं कि कितना तेल डालना है, जैसे तो ना उड़ेल देते हैं. राइट मेन क्या है, घर का खाना टेस्टी नहीं बन पा रहा है राइट, इसलिए तो वो स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर नहीं, कर रहे कैसे नहीं, यही खाना हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं. हैं राइट ये तो एक माइंडसेट बन गया. हाँ हाँ माइंडसेट बन गया है कि बहुत ज्यादा तीखा खाना, और दैट इज नॉट हेल्दी एट ऑल. राइट आप इतने लेक्चर्स देखिए हो रहे हैं कि हेल्दी खाना खाइए, हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए, योगा करिए. ये कुछ हो रहा है? कोई भी प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है. राइट प्रैक्टिकली नोबडी इज डूइंग. सब अपना मेट्रोज में मैंने देख लिया, मेट्रो सिटीज में अपना ऑर्डर किया और खाया. घर में कोई बनाता ही नहीं है. राइट क्योंकि आजकल शेड्यूल भी सबका हो गया राइट, सब बिजी लाइफ शेड्यूल है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चे के लिए टाइम नहीं है. देखिए, आप इफ यू आर अर्निंग यू हैव एम्पल मनी टू कीप अ मेड, या राइट राइट हाउस हेल्प. परफेक्ट तो हाउस हेल्प जब होता है तो पहले तो बड़े बड़े रिच लोगों के घर में खनसामा और ये होते थे. अब तो एवरीबडी इज अर्निंग एंड एवरीबडी हैज द कैपेसिटी टू कीप अफोर्ड इट. राइट तो मैं तो यही कहूंगी कि वो हेल्प लीजिए, थोड़ा अपना भी कंट्रीब्यूट करिए राइट एंड ट्राई टू ईट एट होम. और ये कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए बच्चों को भी, स्पेशली ग्रोइंग किड्स, ग्रोइंग गर्ल्स, ग्रोइंग बॉयज. आप हार्मोन ही खा रहे हो, आप पता नहीं क्या खा रहे हो, आप राइट बाहर क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, आपको क्या पता. कितनी अडल्ट्रेशन है, राइट इट्स नॉट प्योर. और एक चीज है शराब और जो स्मोकिंग वाला हैबिट है राइट, वो कितना इम्पैक्ट करता है? बहुत ज्यादा.
बहुत ज्यादा। क्योंकि आजकल लड़कियां वो शराब लड़कियां तो आप देखिए, चलो आप अल्कोहल को नहीं पहले लेते हैं, अल्कोहल फिर भी मैं कहती हूँ कि मॉडरेशन में अगर आप पीते हैं तो कोई हार्म नहीं है, बट वो मॉडरेशन में पी नहीं सकता ना आदमी, जो एक बार पीता है तो वो तो फिर आगे पीता ही जाता है, जिसको हैबिट होती है तो 2-3 पैक 4 पैक से कम नहीं लेता, तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपका, एक तो मेंटल उस पे, सेकंड आपके लिवर पे, थर्ड आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पे, ठीक है, आपको एक्यूट एसिडिटी हो जाती है, जिसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका अल्कोहल का वो है सब, बट सबसे ज्यादा जो मेनस है दैट इज स्मोकिंग। अच्छा, लड़के तो पीते हैं, चलो माना वो तो पीते ही हैं, बट लड़कियां कितनी पी रही हैं डेली में? डेली क्या, आई डोंट नो, ऑलमोस्ट इन ऑल मेट्रो सिटीज, So this smoking has a detrimental effect on your health, on ladies' health. Right. एक तो suppose you are married and you continue smoking. Yeah. आपने अगर बेबी प्लान करना है वो हो नहीं सकता, because इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर, इसके बच्चे की ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, बच्चे का अबॉर्शन हो जाता है। तो आजकल जो वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने कॉपी कर लिया है, आई थिंक ये ही सब चीज का जड़ है। देखिए पहले जमाने में मेल्स करते थे ये, ठीक है, पर मेल्स के जो फिजिक है, मेल का जो बॉडी कॉन्टूर है, दैट अलाउज, वो उनको भी नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट आइडियली करना नहीं चाहिए, आइडियली तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना स्मोक करना चाहिए, ना ड्रिंक करना चाहिए, बट ये सोसाइटी है, ऐसे पॉसिबल होता नहीं है। बट गर्ल्स आर इंडल्जिंग इन ऑल दिस थिंग, दे शुड रियली आई मीन, कोई भी पॉडकास्ट में यही बोलेगा कि दे शुड क्विट स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल। लेकिन इतना आसान है क्या? एक बार आपका हैबिट लत लग गया, वो लगता है कॉलेज टाइम में, आपके हॉस्टलर्स होती हैं उनको लगता है, माँ बाप के सामने तो आप पी नहीं सकते ना, इतने गट्स नहीं होते हैं, राइट। तो पर पीते हैं, छुप छुप के भी पीते हैं, उसमें क्या है। बट ये है कि ये लत जो है ये बहुत ज्यादा हो गई है। गर्ल्स पहले कहाँ स्मोक करती थी इतना। तो हम थोड़ा लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आजकल जो लाइफस्टाइल का इशू है, लेट में सोना है, राइट, लेट में जागना है, तो उसका हेल्थ के ऊपर कैसा इम्पैक्ट है और हम कैसे उसे अवॉइड कर सकते हैं? लेट सोना, लेट जगना, उठना तो एक लाइफस्टाइल बन गया है उन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए जहाँ पे लेट ऑफिस शुरू होते हैं, राइट, ठीक है। एक ऑफिस जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिस है या कोई भी प्राइवेट ऑफिस है जिसमें आपकी पंचिंग है, आजकल तो पंचिंग होती है, पंच। अगर मॉर्निंग में इसको काम कर उठ के 9 o'clock पहुंचना हो, वो कैसे सो सकता है लेट, राइट। नहीं तो फिर वो तो वहां से आजकल तो पंचिंग है, दैट्स एज सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। बट पीपल इंडल्ज, दोज पीपल हु आर आर्टिस्ट और हु हैव देयर ओन बिजनेस, वो इंडल्ज करते हैं इन सब चीजों में, तो उसमें फर्क पड़ता है, उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ रहा है। फिर वो लेट नाइट टीवी देखते हैं, देन अल्कोहल इज देयर, देन स्मोकिंग इज देयर, सो ओवरऑल द होल सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। आप देखिए कैसे कैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, राइट, टॉक्सिन्स कैसे कैसे आपके बॉडी में अंदर जाते हैं, तो ये तो इफेक्ट करता है। यहाँ ऑफिस गोअर्स जो होते हैं वो सैटरडे संडे इंडल्ज करते हैं इन सब चीजों में, व्हाट आई थिंक, ओके। बट अगर लेट नाइट सोना तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, दे गो टू द ऑफिस। ऑफिस वाले तो दे हैव टू रीच बाय 9-9:30 in the morning. Okay. They cannot do it every day. Okay. तो वो सैटरडे संडे करते होंगे। तो आप कुछ अवेयरनेस कैंपेन करते हैं क्या इसको, मतलब लोगों के सामने लेने के लिए? हाँ, मैंने तो when I was in NTPC मैंने तो हर इशू पे किया था, स्मोकिंग पे किया था। डॉक्टर बोस है हमारे, he is a main person who his clinic is in CR Park. He is one of the best pulmonologists
ओके एंड उनकी टीम ने किया था। उनका तो पूरा रिहैब वाला भी सिस्टम है, वो क्विट भी करवाते हैं स्मोकिंग, तो वो मैंने करवाया था ओके ऑफिस में। बहुत सक्सेसफुल रहा था वो। अच्छा हाँ, ये बाकी हमने हार्ट इश्यूज पे, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गायनी के कितने मतलब टॉपिक्स पे करवाया है अवेयरनेस। स्मोकिंग का तो मेरा इतना अच्छा हुआ था दैट इंडिया हैबिटेट सेंटर में मैंने करवाया था। जो बच्चे जो होता है राइट, आई थिंक 4 या 5 महीने के अंदर एक स्कैन करना पड़ता है, सो so, बच्चे का वो सही है, उसके कुछ पैर में या कहीं पर कुछ अनोमली स्कैन राइट, तो उसमें से पता चलता है क्या बच्चों का मतलब सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो स्कैन हर स्टेज पे किया जाता है। ओके तो 1-2 बार 3 बार, फाइनली 4 चौथी बार स्कैन किया जाता है हर स्टेज पे। ओके तो तो कब तक हम, अगर हमें पता चला कि बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसको ये कर सकते हैं राइट, अवॉइड कर सकते हैं, तो वो क्या? तो पहले ही स्कैन में, पहले 8 अच्छा। वीक्स में और उसके बाद 12 वीक्स में, ओके हाँ इसमें कर सकते हैं स्कैन कर, पता चल Okay. जाता है। अगर सपोज कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसी हुआ राइट, सपोज एक टाइम पीरियड वो पास ऑन हो गया, सपोज टीनेज प्रेगनेंसी है, सपोज 20 सप्ताह या 25 सप्ताह हो गया राइट, तो उस टाइम हम अबॉर्ट कर सकते हैं या वी हैव टू डिलीवर द बेबी, क्या करना है उस टाइम? क्योंकि क्या एक इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द बेबी। Okay, कितना okay. साइज है, क्या है, हाँ, और तो प्रॉपर एबॉर्शन होता है, प्रॉपर टर्मिनेशन होता है। ओके जैसे डिलीवरी होता है वैसे ही होता है। वैसे डिलीवरी करना पड़ेगा बेबी को, क्योंकि क्या है सोसाइटल प्रेशर भी होता है राइट अबॉर्ट करने के लिए, लेकिन आपका मेडिकल साइंस उसको मना करता है राइट, क्योंकि कुछ वीक के बाद फिर इट विल आजकल ये सब चीजें जो है, ये अवेयरनेस या तो बच्चों में होनी चाहिए। ओके राइट दे शुड बी एजुकेटेड इफ दे लिव इन रिलेशनशिप है या जो भी है, तो एक एजुकेशन जरूर होनी चाहिए ओके कि कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। बिकॉज ये सब चीजें अब वो तो जमाना रहा नहीं कि आप मना कर सकते हो या राइट राइट या वी हैव टू प्ले इंटेलिजेंटली, अपने बच्चों को समझा देना चाहिए। ओके एक बेसिक एजुकेशन सबको होनी चाहिए। लेकिन वो टाबू जैसा है राइट, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ उतना मिक्स नहीं हो पाते, वो एक डिस्टेंस मेंटेन होता है राइट, तो वो एक करना चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स आर एजुकेटेड नाउअडेज, राइट मेल फीमेल दोनों एजुकेटेड हैं, दे मस्ट कन्फाइड, या और ये सब चीजें सिखानी चाहिए बच्चों को। या आई थिंक सिखाना जरूरी है, सिखाना जरूरी नहीं है। सिखा रहे हैं इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम देखिए वो मानते हैं या नहीं मानते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट बट बोलना जरूर चाहिए। हाँ, उनको सही एजुकेशन सही गाइडेंस देना जरूरी है, नहीं तो उनको पता नहीं है तो फिर वो ब्राउजिंग में क्या मिलता है पता नहीं क्या नहीं राइट, मिलता। वो सही है नहीं है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन हो कौन सा इंफॉर्मेशन सही है कौन सा गलत है किसी को भी पता नहीं है। सॉरी टू से, या जितने भी ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं पढ़ने के लिए दिल्ली में, दे आर वर्स्ट इफेक्टेड। दे गेट इनटू रिलेशनशिप, फिर सब कुछ, और उसके बाद उनको पता नहीं होता कि क्या करना है। दे कम टू अस, या तो ये सब चीजें आई डोंट वांट टू। या सो यू गाइड देम द Yes, व्हाटएवर, या प्रॉपर्ली यू गाइड देम। हम तो प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, वी टेल द वे, सब कुछ करते हैं, ओके बिकॉज दिस इज आवर, या राइट, दे आर द हमारा ही फ्यूचर काम है बोलना और समझाना। राइट। बहुत समझाते भी हैं। टेलीविजन पे इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे। नहीं, ये है कि आजकल डिफरेंट सीन हो गया है, पहले के जमाने में और अब में, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, या लॉट ऑफ डिफरेंस। एक्चुअली सही जानकारी भी नहीं मिल रहा है, मैं भी स्कूल से कॉलेजेस भी थोड़ा सा कैंपेन देना चाहिए उनको एजुकेशन। हाँ वही, तो वो छोड़ देते हैं सेक्स एजुकेशन क्या है, कौन सी एज में क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन जो भी है, तो एटलीस्ट वो एक एजुकेशन देते तो समझ में आता है उनको, तो वो क्या हैं आजकल स्कूल्स में पढ़ाते हैं। हाँ स्कूल्स में है, लेकिन सब स्कूल्स में नहीं होगा, कुछ प्रीमियम स्कूल्स में हो सकता है लेकिन नॉट इन ऑल स्कूल्स राइट, तो इसी गैप के वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। वो देखते हैं कहीं पर इंटरनेट पे, अभी जो हमारा सिस्टम है बिल्कुल चेंज हो गया। ओके पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं, बच्चे भी डिफरेंट हैं। वो जो डर होता था बच्चों को पेरेंट्स का, वो नहीं रहा है बिल्कुल भी। ओके वो बिल्कुल भी अब जैसे अमेरिकनाइज्ड हो गए हैं सारे के सारे। हाँ हाँ हाँ
टोटल मतलब अलग रहना चाहते हैं, Right. दे डोंट वांट टू स्टे विद द पेरेंट्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए हम तो अब तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट हो गए ना हमारे ओके। तो हमारी एज, मेरे अपने बच्चे हैं उनको Okay. तो हमने संस्कार दिए हैं, समझाया है Okay. सब कुछ राइटली करो, जो भी करना है राइट करो। हाँ, तो मैंने वो कि तो- कम्युनिकेशन है, हाँ, वो ये कम्युनिकेट तो करना है, चाहिए। हाँ। फिर एक बड़ा होना, जैसे नानी दादी होती है ना घर में, लाइक दादी का होना, ग्रैंड पेरेंट्स का होना भी Right. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट Right. ऑन ग्रैंड चिल्ड्रन, बिकॉज दे कम टू नो ये इस तरीके से ये लोग रहते हैं मम्मी पापा हमारे, राइट राइट, तो वो they बॉन्डिंग also को समझ में आता bonding है। समझ में आता है। राइट। सो दैट इज लैकिंग। सो अब वही हो गया ना, मैंने कहा अमेरिकनाइज टाइप का हो गया ना, राइट। जैसे बाहर के बच्चे करते हैं, और उसकी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलो ठीक है, वो भी ठीक है, ये इरा ऐसी है तो हाँ हाँ हाँ, राइट। क्या कर सकते हैं, या टाइम के साथ सब चेंज होगा, तो हम तो रोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं या- सकते आप। लेकिन हमें बस समझाना है क्या सही है क्या गलत है, और अगर जरूरत होगा तो वो आपको कंसल्ट कर, और जितने जल्दी होगा वो कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्ट क्योंकि जितना लेट होगा फिर वो अपने बिल्कुल, हेल्थ के लिए, बिल्कुल। मेनली लेडीज के हेल्थ के लिए बहुत इश्यूज होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिसाइड करना इतना आसान नहीं होगा, जितना जल्दी करेंगे हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, वंस द पर्सन कम्स टू अस, तो हम तो एडवाइस करेंगे, उसके मतलब फायदे की बात बताएंगे, राइट। और तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, आप गाइड बाद में क्या करता है बच्चा, तो नहीं पता चलता ना हमें, राइट हमारे पास तो थोड़ी देर के लिए आएगा, राइट, है ना। तो ये फिर पेरेंट्स की है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे बच्चे को ग्रो अप करते हैं, हाँ, उनको क्या संस्कार देते जो हैं। संस्कारी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, जिन्होंने जॉइंट फैमिली देखी हुई है, जिन्होंने, वो लोग नहीं करते, राइट। या छोटी जगहों के लोग अभी भी नहीं करते, क्योंकि वहां तो बात फैल जाती है, वो भी डर होता है, डर रहता है भाई, कोई एवरीबडी नोज। वो डर भी जरूरी है। डर नहीं रहेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है, राइट। डर है भाई, कोई कैमरा देख रहा है तो हमें भी अलर्ट रहना पड़ेगा, राइट, वी कैन नॉट बिहेव इन ए रॉन्ग वे, बिल्कुल। तो वो भी जरूरी है, कोई आपको देख रहा है, सो दैट यू हैव टू टेक कंट्रोल एंड यू हैव टू टेक कंट्रोल। मैम, मेनोपॉज के बारे में थोड़ा बताइए, कब होता है और वो क्या नॉर्मल है, और कुछ गाइडेंस चाहिए क्या? मेनोपॉज का मतलब होता है कि अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं आना, और जो टाइम पीरियड है वो है कि 6 मंथ से ऊपर हो जाए, ब्लीडिंग नहीं हुई, ओके। तो उसको हम, मतलब वो भी टाइम पीरियड ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी क्या होता है, प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स आना शुरू होते हैं अच्छा। लेडीज में, किसी में बड़ी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है कि उसमें हम, उसका जो फेज है वो शुरू हो जाता है, तो धीरे 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 करके वो ब्लीडिंग बंद होने लगती है और बिल्कुल बंद हो जाती है। ओके। ठीक है, अगर एक पेशेंट आता है मेरे पास कि मेरी ब्लीडिंग बंद हो गई है, इतने मंथ्स हो गए, तो हम कुछ टेस्ट करवाते हैं उनके, ओके। प्रिलिमिनरी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें आपके कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर कुछ हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ओके। ठीक है, सो दैट वी कम टू नो कि अभी इस फेज में, मेनोपॉज की फेज में ही जा रही है, और मेनोपॉज हो गया है प्रॉपरली इसको। ओके। तो उसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स होते हैं वो बताते हैं कि मेनोपॉज हो गया है। इसका एज ग्रुप क्या होता है जनरली? ऐसा एज नहीं होता है, जनरली हम कहते हैं कि 45 टू ओके। 55 इयर्स तक, किसी को तो अर्ली भी हो जाते हैं, हाँ। किसी का मतलब मेनोपॉज 42 में भी हो जाता है। ओके। तो बट अगर आप चेक करो तो सब कुछ नॉर्मल होता है, राइट। जरूरी नहीं है कि अब नॉर्मल हो, ये आपकी थोड़ा सा ये होती है, अपनी बॉडी की टेंडेंसी है कि आपको पहले हो गया या लेट हो गया, बट यूजुअली हम 45 टू 55 तक मेनोपॉज, 45 भी नहीं, थोड़ा लेट, 50 लगा लीजिए आप, 50 Okay, टू ठीक। 55 तक। ओके। जो हेल्दी फीमेल्स हैं, जो जिनकी न्यूट्रिशनल दिस थिंग हेल्थ इज गुड, जो नॉर्मल जिनको मेंसेस आते थे, उनको
नॉर्मल तरीके से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी को मीनोपॉज हो जाए, ब्लीडिंग रुकी हुई है और हमने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मीनोपॉज है, आफ्टर मीनोपॉज सपोज 6 महीने के बाद या साल के बाद उसको स्पॉटिंग होती है, तो अगेन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट लेडी। ओके, ठीक है, मीनोपॉज में स्पॉटिंग होना गलत है। तो वो फिर ये जो स्पॉटिंग होता है, ये कभी बच्चे होने के बाद भी स्पॉटिंग हो सकता है, राइट? ये स्पॉटिंग वाला वो चीज अलग चीज है, अलग चीज है। ओके, वो होती है, यूजुअली होती है। Okay. और यूजुअली होती है, क्योंकि ये स्पॉटिंग होता है, लोग डर जाते ये हैं। डेंजरस नहीं होती, बट Okay. मीनोपॉज में अगर ब्लीडिंग होती है आफ्टर मीनोपॉज, ओके, so then we have to investigate for so many things. ओके। For So, cancer, for I think women's body is very different, right? It needs a lot of investigation, lot of, and और एक चीज है मूड स्विंग्स, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कैसा होता है मूड स्विंग्स। देखिए क्या मैं बोलूं, मूड स्विंग्स तो आप बच्चा होने के बाद भी उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, उसमें भी लेडी बिल्कुल वायलेंट भी हो जाती है और भी हो जाती है। तो ये हर एक स्टेज पे डिफरेंट होता है मूड स्विंग। ओके। लड़कियों में, यंग गर्ल्स में भी बड़ा होता है हाँ, मूड स्विंग। तो ये जस्ट नॉर्मल है, इसमें कुछ नॉर्मल है, थोड़ा सा नेचर भी होता है। ओके। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑल्सो, नेचर ऑफ अ पर्सन। हाँ। कुछ लड़कियां बड़ी चीखती चिल्लाती हैं, कुछ नहीं चीखती हैं। ओके, तो ये है, बट इसका फिर वो साइकेट्रिक एंगल हो जाता है कि भाई ओके, फिर रेफर कर दो, ओके। हाँ, बहुत ज्यादा वायलेंट है या कुछ है। ओके। बाकी तो मूड स्विंग नॉर्मल तो होता है, सबका होता है। हाँ, सबका होता है, सबका राइट? होता है, होता है। हाँ, इट्स जस्ट नॉर्मल। थोड़ा हम थायराइड की तरफ जाते हैं, राइट? अच्छा, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, और कैसे अपने बॉडी को इम्पैक्ट करता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं डिटेल। देखिए मोस्ट कॉमनली हाइपोथायराइडिज्म होता है। ओके, What is hypothyroidism? Hypothyroidism is a condition where your TSH level increases ओके, और T3, T4 थोड़ा T4 कम हो जाता है और TSH, बट उसकी सिम्टम्स भी होते हैं। ओके, पेशेंट को सिम्टम्स भी आते हैं। नंबर 1 सिम्टम होता है हाइपोथायराइडिज्म का वेट गेन। ओके। यूजली ये लेडीज में होता है। हाँ, यूजली थायराइड प्रॉब्लम जो होती है वो लेडीज में ज्यादा होती है। ओके, फिर उसमें हार्ट रेट भी थोड़ा स्लो हो जाता है और पल्स भी स्लो होती है। ओके, स्किन कोर्स हो जाता है बिल्कुल। ओके, ठीक है, ये मैं कह रही हूँ जो थोड़े से एडवांस केसेस होते हैं। नॉर्मल केसेस में आपका एक वेट गेन ही दिखता है, ओके। जो आप सडनली आपका वेट 3-4 किलो बढ़ गया तो आप करवाएंगे, भाई डॉक्टर बोलेगा भाई पहले आप थायराइड कराओ। थायराइड टेस्ट। तो ये है, बट थायराइड इटसेल्फ इज अ टोटल सिस्टमिक डिजीज। ओके, इट इफेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर्स। ओके। तो अगर आपकी उसमें स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में, हाइपोथायराइड में, राइट? हाइपोथायराइडिज्म में, तो उसकी तो फिर और भी एडवांस चीजें होती है। मिक्सेडीमा होता है, उसमें तो बहुत ज्यादा TSH लेवल काफी हाई होता है उसमें। तो ये जो थायराइड होता है ये नॉर्मल सबका नॉर्मल हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं विद अ मेडिसिन कॉल्ड थायरॉक्सिन। तो ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 में से 5 लोगों को तो थायराइड है ही है। ओके। और हाइपरथायराइड क्या है? और हाइपर इज टोटल उल्टा ऑफ हाइपो। ओके, उसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी आंखें एकदम पॉप्ड आउट हो जाती है बिल्कुल, और आपका पल्स फास्ट हो जाती है। उसमें हार्ट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, ओके, ओके। वो दैट इज मोर डेंजरस। ओके, हाइपर इज मोर डेंजरस देन द हाइपो। ओके। तो उसके लिए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के क्या आप गाइडेंस? मेडिसिन दिए जाती हैं उसके लिए, और उसको पूरा मेंटेन किया जाता है, पूरा लाइफ लॉन्ग मेंटेन। हाँ मेंटेन करना। फिर कभी कभी ये रिवर्ट हो जाती है, ओके, इट विल वो हाइपो में तब्दील हो जाता है। अच्छा, हाइपो इज बेटर, राइट? यू कैन नॉट से बेटर, हाइपो भी बड़ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ओके, ओके, बट ये है कि यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर हाइपो, लाइफ लॉन्ग होती है वो। ओके। हाइपर का तो अलग ट्रीटमेंट है। अलग ट्रीटमेंट है, राइट? मतलब हाइपर से
हमें हाइपो में कन्वर्ट करना है और बस नहीं कन्वर्ट नहीं करना है, जरूरत नहीं है कुछ। ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ओके आफ्टर सर्टेन आप हाँ, वो कन्वर्ट नहीं करना है, वो थोड़ा मतलब हो जाता है हाइपो में, बट उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ओके ओके। टोटल डिफरेंट ट्रीटमेंट। और डायबिटीज का ट्रीटमेंट आप क्या कंसल्ट करते हो? डायबिटीज के लिए क्या क्या फॉलो करना है? डायबिटीज के तो बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप आपके ट्रीटमेंट है, रिजीम है। ओके एक तो सबसे पहले अगर आपको डायबिटीज डिटेक्ट होती है ठीक है। तो आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करनी है, उसमें सबसे जरूरी है ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी, और साथ में HbA1c। ओके तो HbA1c इज 3 months कंट्रोल, ठीक है। तो वो आपने करना है। बाकी भी आपको सारे ब्लड टेस्ट करवाने हैं, ओके क्योंकि ये जो डायबिटीज है ये खाली एक पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं इफेक्ट करती, सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है। तो आपने यूरिन का भी टेस्ट करवाना है, किडनी फंक्शन टेस्ट, LFT, KFT, ये सारे आई चेकअप पूरा करवाना है आपने। ओके ओके तो ये आपका पहले तो हो गए टेस्ट, फिर उसके बाद आपका मैनेजमेंट होता है कि अगर आपकी शुगर थोड़ी सी ज्यादा है, बड़ी ज्यादा नहीं है, मतलब आपकी जैसे फास्टिंग फॉर एग्जांपल 140 आ गई, पीपी 200 आ गई, तो हम बोलते हैं कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से आप कंट्रोल करिए। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या क्या आता है कि आपने शुगर एकदम नहीं लेनी है, आप मीठी चीज भी नहीं लेनी है, आप 1 घंटा पौना घंटा मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करिए, ठीक है, एंड आप जिसमें फाइबर हो ओके वो चीज लीजिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में आपने आप अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग्स वगैरह, बॉइल्ड एग वगैरह ले लीजिए, बट तला हुआ फ्राइड आइटम एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा नहीं खाने हैं। प्रोटीन डाइट अच्छी ले सकते हैं आप। उससे क्या होगा कि आपने अपने स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में खाना खाना है, ज्यादा ज्यादा टाइम खाना है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वालिटी में खाना है। ये नहीं है कि पूरा पेट भर लिया हमने, इतने चावल ले लिए। राइट तो राइस इज आई मीन कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें बहुत ज्यादा। फिर आप वैसे ही मेंटेन करिए अपना चार्ट, ओके और डिनर भी आप लाइट लीजिए। ओके तो आपको सैर करना है बहुत जरूरी, वॉक करना है बहुत जरूरी, और अपनी डाइट को मॉनिटर करना है। ओके ये तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका। अगर आपसे थोड़ा ज्यादा शुगर है और नहीं कंट्रोल हो रहा है विद योर डाइट, ओके तो आपने सैर वैर तो कंटिन्यू करनी ही करनी है। देन वी ऐड मेडिसिन। फिर अगर मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम इंसुलिन ऐड करते हैं। ओके वो तो फिर ओवर द टाइम हो गया ना, बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाते हैं तो फिर राइट राइट तो ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना। देयर सो मेनी स्टेप्स या स्टेप्स, यू नो, सो मेनी स्टेप्स कि कौन कौन सी दवाई दी जाती है, कैसे दी जाती है। और आजकल तो और वेट रिडक्शन के इंजेक्शंस भी आए हुए हैं। उसका क्या साइड इफेक्ट है? उसका साइड इफेक्ट है, अब जिसको जरूरी देना है उसको देते हाँ, हैं। बहुत तो अगर मोटापा हो गया तो मोंजेरो और वो आ रहा है, ओके ओके तो वो भी चला हुआ है आजकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट। मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप डाइट से कंट्रोल कर लो ना, दैट इज द बेस्ट, दैट इज द बेस्ट। या कभी कभी खाइए जो चीज है, मीठा बिल्कुल छोड़ दो। मीठा तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते ना खाना। राइट। तो काफी सारे डिजीज हमारे लाइफस्टाइल कंट्रोल करेंगे, लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे तो काफी सारी चीज हमारा 50-60% या 70% राइट प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाएगा। डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो हार्ट को भी तो इफेक्ट करती है, आपके मसल्स को इफेक्ट करती है, राइट टिंगलिंग सेंसेशन होना शुरू हो जाती है, आपके नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। सो इट्स अ वेरी वेरी यू नो व्हाट आई से multi systemic disease. And coming to blood pressure, blood pressure is ब्लड प्रेशर देखिए, ब्लड प्रेशर का तो सॉल्ट के साथ बड़ा कनेक्शन है, right ठीक है। सॉल्ट, स्ट्रेस से भी बीपी आपका हाई होता है। ओके अब बीपी जिसका हाई होता है उसको अगेन ही हैज टू अंडरगो बैटरी ऑफ टेस्ट,
सारे Right, टेस्ट right. करने हैं, ECG, इको, आपका एब्डोमेन का भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा, सब कुछ करवाना पड़ता है ब्लड प्रेशर के लिए. Okay. एंड देन यूजुअली इट इज मैनेज्ड बाय ऑल द मेडिसिन. आजकल तो बहुत तरीके की मेडिसिन आई हुई हैं ब्लड प्रेशर के लिए, Okay. वेरी गुड मेडिसिन. Right. बट वही है हाउ टू गिव हाँ. एंड हाउ टू मॉनिटर. राइट, वो तो आपका केस बाय केस एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट, डायग्नोज करना पड़ेगा, तो वो कस्टमाइज सोल्यूशन रहेगा. आजकल तो ब्लड प्रेशर यंग लोगों में बहुत ज्यादा है. राइट. उसमें एक कॉज है स्मोकिंग. स्मोकिंग इज द बिगेस्ट कॉज. दैट पर्सन हैज टू क्विट स्मोकिंग. बिल्कुल स्मोकिंग तो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए. राइट. सो और आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी इसमें बड़ा आता है. अगेन सॉल्ट इनटेक, आपका फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, जो बाहर चिकन मटन, जो बाहर ग्रेवी वाली चीज़ें खाते हैं, दैट इज तो सॉल्ट इंटेक कम करना है, राइट. सॉल्ट इनटेक कम करना, बिल्कुल सादा खाना खाना है. ओके, जितना नॉमिनल मिनिमल चाहिए बस उतना ही खाना है. तो आपका ये पॉडकास्ट में क्या मैसेज था? क्योंकि आई थिंक ये आपका कौन सा पॉडकास्ट है? थर्ड पॉडकास्ट. तो ऑलरेडी अपने पॉडकास्ट में बहुत सारे 1-2 दे चुके हैं, तो इसमें आने का और क्या मतलब कुछ मिसिंग मैसेज था, या और कुछ मैसेज आप पूरा कम्युनिटी को देना चाहते हैं, हमारा व्यूअर्स या फॉलोअर्स को देना चाहते हैं? देखिए, पॉडकास्ट एक डॉक्टर से आप पॉडकास्ट करवा रहे हो. मेरा तो 30 years ऑफ एक्सपीरियंस है. तो मैंने तो हर टाइप के मतलब हॉस्पिटल में हर टाइप के लोगों के बीच में मैंने काम किया है. ओके. व्हाट आई फेल्ट दैट अगर हम अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इस दौरान पहले की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इस दौरान अगर आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करते हो तो आपकी हाफ द डिजीजेस विल बी ओवर. हाफ. मतलब यू रियली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज you at this point of time you're getting heart attacks while doing gym. कुछ और हो रहा है, young person they are going, right, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी को हेमरेज हो रही है, किसी why this is lot of stress. I think ये स्ट्रेस को और ये जो आपके रात के जो सोने वाले आवर्स हैं उनको ठीक करें. मतलब बट स्ट्रेस is again one factor. Yeah, स्ट्रेस तो सबसे बड़ा फैक्टर है. सबसे बड़ा फैक्टर है. लोगों को चाहत है पैसा कमाने की. बहुत ज्यादा चाहत हो गई है. गुड़गांव, नोएडा से गुड़गांव कम्यूट करने जाते हैं. आप सोचो, जो आदमी 2 घंटे कम्यूट करेगा वो क्या अपना 4 घंटे हो जाते हैं. 4 घंटे हो जाएंगे तो वो क्या प्रोडक्टिविटी देगा? राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोडक्टिविटी. सेकंड, बच्चों का क्या ख्याल रखे हो? इतना आप आज बाहर जा रहे हो तो बच्चों का क्या ख्याल? Yeah, people need also time, the children, and they also need some special time, right? That is the उनको अगर नहीं मिलेगा तो वो तो बिखर जाएंगे, right? और कुछ जो हो रहा है आजकल, right? That's due to that only, right? You are not giving them time, so they are spending time with somebody else, and but I suppose nowadays people are working from home. Yeah. I think that is the best solution for this. They can the female they can look after their kids. yeah. They can manage their things accordingly. Yeah, that is best. I won't tell best because you are inside this 4 walls. That is also will be stressful. When you go to office, you will mix with some. So it's a hybrid. I think hybrid is the best. Hybrid is best. Say Yeah. 1 or 2 days you go to office and 3-4 days you. Yeah, that will be best because is the best. in this 4 walls also you will be confined. But the only thing Yeah. is do yoga. I Yeah. think do yoga and be take some time for you and your Yeah. kids. Okay, right. Take them out. Yeah. Spend time with them. Yeah. अगर बड़े भी हो गए हैं, बड़े बच्चों को भी ले जाओ आप. Yeah. You should gel with them. Yes. ठीक है, वो चीज नहीं रही. चाहे बड़े भी हो जाए, उनके साथ you spend some time. Be stress free. Right. And लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में तो योगा आता है. योगा करो, वॉक करो और मेडिटेशन वगैरह भी. मेडिटेशन करो एंड टेक हेल्दी फूड.
Yes. And everybody knows nowadays what is healthy, what is unhealthy. Right. And I'll add watch healthy content also. What healthy content. बिकॉज मैं भी कंटेंट क्रिएशन में हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कुछ गलत सलत देखते हैं, उसके वजह से पूरा सिस्टम में हिल जाता है, राइट? अगर आप सही देखोगे, सही कंज्यूम करोगे तो आपका दिमाग भी सही होगा। एंड टाइम अपनी जैसे फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, Right. फैमिली मेंबर्स, पहले फैमिलीज होती थी इकट्ठी आती थी, कजन्स आते थे, राइट they used to spend time with us, you know. राइट There was a time कि सब आके इकट्ठे हो रहे हैं नानी के घर अपना बैठ के, और डिशेस बन रही हैं, राइट खुद भी बना रहे हैं, but वो चीज खत्म हो गई। आई थिंक राइट आई थिंक वन शुड मिक्स वेल, या फ्रेंड्स को बुला लो, Right, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, बट yes, वन शुड टेक टाइम फॉर लेजर ऑल्सो, नॉट Yeah, ओनली yeah. वर्किंग Right. दिस थिंग। अब मेट्रोज में तो आपने देखा ही है कि बहुत बहुत ज्यादा भागदौड़, हाँ, मतलब भागदौड़ वाला है। लाइफस्टाइल है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, दूसरे के लिए टाइम, तो एटलीस्ट अपने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए, एज वेल एज आपका जो भी पेरेंट्स है, बच्चे लोग है, तो थोड़ा सा एटलीस्ट वीकली एक दिन कम से कम दे दिए तो दे विल बी ऑल्सो ऑन ट्रैक। हाँ। नहीं तो फिर बहुत ज्यादा नहीं, फिर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसका then सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसका। फिर आपको मुंह छुपा के ही फिर बढ़ना हाँ, वही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा अरे वहाँ ये क्या कर लिया, अरे मैंने तो सोचा नहीं था, फिर सो इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? आउट ऑफ तो कंट्रोल। आप बहुत सारे अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल देते हैं जहाँ, बिल्कुल, तो वही है। एक शांति होनी चाहिए, लाइक Yeah. एक माइंड की शांति होनी चाहिए। पीपल शुड रियलाइज कि अपने लिए कुछ टाइम हम Right, स्पेंड right. करें। वी शुड मेडिटेट, वी शुड डू योगा। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं कितना स्ट्रेस देते हैं इन सब चीजों में कि यू शुड डू योगा, यू Okay. शुड, मतलब इतना कैंपेनिंग हो रही है इसके Right. लिए, वन शुड फॉलो ऑल्सो ना। I think June 29th, right? That is the yes, yoga day, International Yoga Day. Yeah. People should celebrate that, and they should understand. And avoid, you know, things from Swiggy or from these. उनका बिजनेस बंद हो जाएगा आप अगर ऐसे बोलोगे तो। अब देखिए बिजनेस बंद, या तो वो हेल्दी फूड प्रोवाइड करें। Yeah, I think they will also learn. They should provide healthy food and healthy snack options also. Yeah, that's a good thing. So अब वो होता नहीं है ना, इतनी जल्दी बनते नहीं है ना हेल्दी फूड, इट टेक्स टाइम। right. आपने कुछ देखे क्या हमारा एपिसोड्स वगैरह? ना देखे नहीं कुछ? क्या चीज? स्टोरीज बाय सुधीर, अपना जो यूट्यूब चैनल है, पिछले कुछ पॉडकास्ट आप देखे या नहीं देखे? ठीक है, नो इश्यूज। ओके, थैंक्स नीना मैम, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय शो स्टोरीज बाय सुधीर। हियर एवरी स्टोरी इज योर नेक्स्ट स्टेप, सो थैंक्स फॉर शेयरिंग योर impactful insights, and yeah, Thank you so much. It was my pleasure, talking to you, discussing the gynae as well as the medicine with you, and how to overcome all these diseases. What are the patterns? What are the patterns of menstrual delay and cycle? So there are so many things I can talk about gynae, but there is shortage of time. yes, So next time I think I'll elaborate on these okay, diseases. sure ma'am, yeah. Thank you so much. Yeah, welcome.